Okay, everyone, welcome back. So, as you all know me, I'm Sakshi, and today we are all here for a master class that is something to learn about. And from our, master itself, Mr. Vivek Chauhan. Let me introduce him a bit. He have completed his studies from St. Luke's Senior Secondary School, Solon. Then he did his graduation in pharmacy from Pune College of Pharmacy, Bharati Vidyapeeth, Pune. Thereafter, he pursued and he completed rather his MBA from Central University of Himachal Pradesh, and he worked for a year in Coal India Limited as a management trainee. He qualified GPAT, that is Graduate Pharmacy Aptitude Test, in the year 2012 and UGC NET in the year 2016. He is a marvelous teacher, and he qualified various PSU competitive examinations like ONGC, NHPC, NPCIL, Indian Bank, HPPCL, and there are a lot more that he cracked, and he's a master in himself. So sir, I request you, and let me tell others that Mr. Vivek Chauhan is also working as an assistant professor in our esteemed university, and he'll be guiding you and mentoring you through the all the stages of learning. So without further ado, let's welcome Mr. Vivek Chauhan. And sir, now the virtual stage is yours. Let's start with the master class, and I request all the participants to kindly pay attention and learn. Thank you so much. Thank you, Sakshi. Thank you for the lovely introduction. I hope I'm audible to everyone. Yes, sir, you're perfectly audible. Yeah, so good evening all. So first of all, on behalf of the Shuni University Center for Distance and Online Education, I welcome you all. Your decision to embark on this journey is commendable, and we are really very happy and thrilled to have you as a part of this learning community as such. As you engage in this program of ours, MBA and BBA, my sincere advice to you all would be that you just don't listen to the lectures as such. You ask questions. Whatever doubts you have in your mind, you ask. Also, you try to participate in the class as much as you can. Okay, and try to take this as an opportunity in building the network and honing your skills as well. Okay, so let's make this online education opportunity of yours as a gateway to a bright future ahead. Okay, so I welcome you all once again. Right, so not taking further more of your time about the introduction and all, let's begin with the topic. So since today is the first class of yours, I thought like I'll give you the brief gist and introduction of the management, like Henry Fayol's 14 principles of management, right? So let me just share my screen. So is everyone able to see the PPT? Yes, sir. Okay, so before I start this, I want to ask, like, we are talking about management as such, management. So can any one of you tell me what exactly management is? किसी को भी कुछ रफ आइडिया है कि मैनेजमेंट क्या है, क्या होता है? Any one of you can ask. I mean, sorry, answer. Of course, I'm going to ask. Come on, let's be interactive. अगर मोनोलॉग रहेगा उनमें तो मजा नहीं आएगा ऑनलाइन का, बोरिंग लगेंगे टॉपिक्स. So since it's your first class, try to be as interactive as you can. Someone is trying to speak, I guess. Sir, good evening, sir. Yes, good evening. Sir, management is getting things done by others. It's Right. called management. According Very to good. Henry Fayol, management Hello. is forecast. Yes. To That's very forecast, nice. to plan, to organize, Right. to Right. command, to coordinate, and to control. Wow. So you know a lot about management as such. That's great. Very Yes, good. sir. Very good. Keep Thank it up. you, sir. Keep it up. So as rightly said by Pooja, management is all about getting things done through people. This was said by Mary Parker Follett. Okay. She was an American consultant, and she gave this terminology. As well, there are different terminologies given by different philosophers, writers, and engineers as well about management. Henry Fayol, as she has rightly mentioned, he said, management is to manage, to forecast, to plan, to command, to coordinate, and to control, right?
सो मैनेजमेंट अगर आप उसमें देखें, आम उसमें हम बोलचाल में वी से लाइक यू हैव टू मैनेज थिंग्स. So at one point of time in your life, we all are managers, right? We have a function at home, ठीक है, कुछ शादी ब्याह का फंक्शन है या कुछ, we have to manage the things, right? So it's about getting the things done through people. टेंट वाले से बात करोगे आप, भाजी वाले से बात करोगे, राइट? और डिफरेंट लोगों से बात करोगे, बैंड बाजा से बात करोगे. सो आप बेसिकली उस टाइम पे एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं. यू आर मैनेजिंग द थिंग्स, यू आर मेकिंग श्योर दैट थिंग्स आर गेटिंग डन बाय द पीपल एंड द इवेंट इज getting done without any problem, right? You are able to accomplish your task which you have been assigned, right? शादी ब्याह फंक्शन जो भी हुआ, तो ये नॉर्मल चीज है मैनेजमेंट. सो अब मैनेजमेंट में क्या था कि देयर वर डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. डिफरेंट अप्रोचेस मैनेजमेंट की हमने कही थी कि होती है अप्रोचेस, उसमें क्लासिकल अप्रोच होती है मैनेजमेंट की, राइट? तो आज हमारा फोकस सिर्फ क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच पे रहेगा, और उसमें भी दो चीजें कही गई थी क्लासिकल अप्रोच में: साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड सेकंड वाज द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, राइट? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय F.W. Taylor. He talked about the scientific principles, how the things should be done. Okay, so he applied scientific methods, scientific ways. I am just giving you the brief introduction. Okay, डिटेल्स बाद में आपको बताई जाएगी. आज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आराम से सुनिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछिए, बेसिक है आज, कोई ज्यादा टेंशन स्ट्रेस वाली बात नहीं लेनी. तो उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए F.W. टेलर ने, एंड ही सेड दैट when he went to the shop floor, factory में जहाँ पे काम हो रहा था, he came to know that things were not getting done properly, right? Lot of the things were done in a haphazard way, and there wasn't that much output which should have been given by the employees, the workers as such. Then what he did was he went to the shop floor and he did time and motion study, right? एक काम को करने के लिए एक आदमी कितना टाइम लेता है, राइट? और कितना टाइम लगना चाहिए, राइट? He also talked about the skills, what skills a particular guy is having, only that job should be given. So that was brief about the scientific principles. Although इसमें और भी है, थियरीज है, बड़ा कुछ है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. आज हमारा मेन फोकस रहेगा हेनरी फ्यूल पे एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में. Why I am teaching you this? Because these 14 of principles of management which Henry Fayol gave are still relevant in today's world in one way or the other. How these are relevant and why we are going through these topics, you will get to know. Okay, so हेनरी फ्यूल के बारे में हम बताएं तो हेनरी फ्यूल बेसिकली, जैसे कि पहले स्लाइड में लिखा है, he gave 14 principles of management. But before that, these are the basic 14 principles which you can see on the slide. Division of work, ये हम डिटेल में आगे बताएंगे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो just to tell you about Henry Fayol, right? So Henry Fayol was a French engineer. He used to work in a coal mine, and he gave the general administrative theory. Now, what was the general administrative theory? General administrative theory talked all about how the things should be done and what are the things the manager normally does. Okay, so उसने ये concept दिया Henry Fayol ने कि he identified 5 functions of that manager performs. As Sakshi rightly said, like managers perform planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. These are the basic 5 functions. आप कहीं पे भी जाते हैं किसी भी कंपनी में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो मोस्टली मैनेजर यही काम करता है. प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. एंड आप भी जब मैनेजर कल को बनेंगे तो आप भी यही सारे काम करेंगे, राइट? यू आर गोइंग टू दी ऑल दीज थिंग्स एज अ मैनेजर. सो प्लानिंग, व्हाट इज ऑल अबाउट प्लानिंग? इट इज लुकिंग अहेड. व्हेन यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू प्लान, यू चॉक आउट कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कैसे करना है. एंड Henry Fayol said that this is the one of the most difficult task, hardest part, planning, right? Drawing up a good plan. Okay, so plan आपका ऐसा होना चाहिए which is achievable, of course. ऐसा नहीं है बहुत हाई आपने प्लान कुछ चीज को कर दिया उसको अचीव नहीं कर पाया. And you should have all the resources to achieve that plan, right? Second comes the organizing part. Okay, and an organization can only function well if it is well organized. Without organization, organized part कुछ भी नहीं होगा. अब what does it mean organizing? It means you need to organize sufficient capital, staff, raw material, so that organization can run smoothly, right? So if you want to do something, you need material, man, and resources, right? Without that, you cannot do. So for that, you have to organize all the things. Only then that particular task can be completed.
For example, if you want to build a car, right, you need the factory, you need the man, you need the material, okay, and you need the machines. So that is all about organizing. Next comes commanding. Okay, when you have to give clear out loud instructions to the employees, okay, you need to command like that you have to do this thing, okay. So aapko, you have to be hard task master at times to make sure that the things are done. You have to be in a commanding position. Take an example of an army officers, general and all. They are basically, why they are called commander, because they need to command. They need to put their foot down and they need to tell that this thing has to be done. Okay, so it's all about commanding. Okay, clear instructions should be given to the employees so that there is no confusion and chaos, right? Then comes coordinating. Okay, when all activities are harmonized, organizations will function better. Okay, you have to coordinate. You have to coordinate with the marketing team, right? You have to coordinate with the finance department and vice versa. The marketing guy has to coordinate with the finance department, right? And same is the thing in your function, which I was talking about. घर में कोई शादी ब्याह का function है, तो वहाँ पे also you coordinate with different people, right? Tent वाला, भाजी वाला, and all about that. So it's all about coordination. बिना coordination के कुछ भी नहीं होगा, right? Then comes controlling. Now controlling is verifying whether everything is according to the plan. This is the very most important stage and part of the management process as such, controlling part. Most of the time what we do, we just plan, organize, command and coordinate. That's it. We do not control the things. So the last step is very important. We need to control. In today's world, like for example, how do the organizations control? They do the different audits. राइट इन द बैंक्स यू नो कोई भी होते हैं बैंक में तो बोलते हैं यार आजकल हमारा ऑडिट चल रहा है, राइट, इंटरनल ऑडिट। तो बैंक क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी कराते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो बाहर से आता है, इंटरनल ऑडिट होता है जो बैंक खुद करवाते हैं। व्हाई डू दे डू दिस? टू चेक वेदर द प्रोसेसेस आर बीइंग फॉलोड इन अ राइट वे, सो दैट they are able to achieve the objective of the organization. कोई लॉस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, so they control. You have to control. अब इसमें भी बहुत डिटेल होती है कि कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब डिटेल बाद में हम बताएंगे, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हेनरी फ्यूल ने बेसिकली ये 5 फंक्शंस दिए थे जो मैनेजर करता है, राइट। उसके बाद हेनरी फ्यूल ने बिलीव किया था मैनेजमेंट वाज एन एक्टिविटी common to all business endeavors, governments and even at homes. Okay, he believed management activity is carried out at each and every place. So this led him to the development of 14 principles of management, which he gave, and these are like very common and very famous. So, and why he gave these 14 principles of management? To make the organization effective as well as efficient, right? तो आपको effective भी बनाना है organization को और efficient भी बनाना है। Now there is a difference between efficiency and effectiveness. Okay, ऐसे लगता है कि सेम है बट सेम नहीं है। Efficiency is basically getting the most out of the least. Okay, आप कोई 10 रुपए 100 रुपए की चीज कोई प्लांट में लगा रहे हैं और उससे आप 50 आइटम बना रहे हैं, तो वो एक तरीके की आपकी एफिशिएंसी है कि ओके 50 आइटम्स आर गेटिंग प्रोड्यूस बाय 100 रुपीज। ओके, तो एक उसको बनाने के लिए 2 रुपए लग गए, राइट। सेम वे कोई और है जो कि 100 रुपीज में 25 आइटम्स बना रहा है, सो पर यूनिट ही इज टेकिंग हाउ मच 4 रुपीज। सो एफिशिएंसी फर्स्ट केस में ज्यादा है, दैट इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, राइट। इफेक्टिवनेस इज मेकिंग श्योर दैट द टास्क the organization which has given it is getting achieved. Okay, so that is the difference between effectiveness and efficiency. As a manager, your task is to be efficient as well as effective. बिना एफिशिएंसी के इफेक्टिवनेस का कोई मतलब नहीं है, और बिना इफेक्टिवनेस के एफिशिएंसी का भी कोई मतलब नहीं है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, दैट इज अ बिग टास्क एंड दैट इज अ बिग चैलेंज। जितने भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप सीईओज हैं, that is what they are doing. They are making their organization effective as well as efficient. Okay, so उस पे आपका सब कुछ डिपेंड करता है, पैकेज एंड ऑल जो भी कंपनी आपको देती है। So this is all about efficiency and effectiveness. Now coming back to Henry's 14 principles of management, the first principle of management which he gave was division of work. So
division of work increases efficiency and productivity, as I've told you. So basically what it means that you have to divide particular work, right? Suppose आपको कुछ प्लांट में कोई बड़ी सी आइटम बनानी है, कोई एरोप्लेन बनाना है, कोई कार बनानी है, तो आप वर्क का डिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है एक ही आदमी उसके गाड़ी के टायर्स को भी फिक्स कर रहा है, स्टीयरिंग को भी कर रहा है और उसके मिरर को भी कर रहा है, राइट, शॉकर्स भी लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट आदमियों को डिफरेंट चीज दी जाएगी, ताकि this will make that particular guy specialize in that particular task, and it will increase the efficiency and productivity of the organization, right? Coordination is necessary to ensure that all tasks fit together seamlessly. तो coordination भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है division of work आपने कर दिया, खाली हर आदमी को बता दिया कि भाई ये काम करना है और coordination नहीं है दोनों के बीच में। So that is also, you have to make sure that there is coordination between the different division of work activities which you are giving. Okay. अब इसका एक हमने लाइव जो नाउअडेज के कंटेक्स्ट में देखा जाए, एक एग्जांपल लिया है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड पीपल डू, दे डिस्टिंग द टास्क फॉर ईच एम्प्लॉय, राइट? लाइक ऑर्डर टेक करने के लिए कोई और एम्प्लॉय होता है, फूड प्रिपरेशन के लिए कोई और होता है, एंड देयर आर लाइक आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बिग सिटीज में ड्राइव इन थ्रू होता है। लाइक ड्राइव इन, यू जस्ट ड्राइव इन योर कार, यू गिव द ऑर्डर एंड फ्रॉम द अदर साइड यू कैन टेक अवे द ऑर्डर। So different people are given different job, right? एक ही आदमी वो काम नहीं करता कि ऑर्डर भी ले रहा है और ऑर्डर उनको दे भी रहा है, सर्व भी कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हिच ही गेव, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? नेक्स्ट वाज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. So authority is the right to give orders and power to exact obedience. Okay. अब authority क्या होता है? It gives you right to give orders, right? और exact obedience is you get obedience from that person in return. ठीक है. Responsibility is the obligation to perform the assigned task. Responsibility is a sort of obligation to perform that particular task, right? Authority and responsibility go hand in hand and must be balanced for effective management. So it's not like authority hai and then there is no responsibility. If you remember a famous dialogue from Spider-Man, उसमें कहा गया था, with power comes responsibility, right? So with authority comes responsibility. If you have authority, then you have responsibility as well, right? So both of these things go hand in hand, right? So आप मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लियर हायरार्की है इन आउटलेट्स में, ओके, और मैनेजर्स, असिस्टेंट स्टाफ, मैनेजर ओवरसीज करते हैं आउटलेट का, बट अकाउंटेबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, इट विल बी फिक्स्ड ऑन द मैनेजर, स्टाफ पे फिक्स नहीं होगी. सेम इज द केस इन द कंपनीज, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इफ यू आर अ मैनेजर, you are going to assign different tasks to the people, but ultimately the sole responsibility of that task getting completed will be fixed on you, right? So you have to balance authority and responsibility as well. ठीक है, ऐसा नहीं है आप अथॉरिटी से आपने किसी को ऑर्डर कर दिया एंड यू देन जस्ट श्रग ऑफ योर शोल्डर्स दैट इट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, आई टोल्ड दैट पर्टिकुलर गाय टू do the task. That you cannot do. Okay, so with authority comes responsibility. Next is discipline. So employees should respect the company rules and policies. Okay, discipline, as you know, it's very important in our life. When we were in schools, we had to be disciplined. When you're in college and university, we had to be disciplined. So discipline is very essential part of our lives. Discipline हर जगह पे होता है. कोई भी organization में आप जाइए, आर्मी में जाइए, corporate world में जाइए, कहीं पे भी जाइए, discipline is must, right? Managers should be fair and consistent in enforcing discipline. Okay, ऐसा नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि रूल्स को फॉलो करना है और दूसरे को बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, आप मेरे कलीग हो या फ्रेंड हो, आप वो फॉलो मत कीजिए. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एन HR मैनेजर, तो आप आपका कोई कलीग है वो आपका फ्रेंड है और दूसरा कोई है वो आपका फ्रेंड नहीं है, and you have made sure that everyone has to wear formals in the office. So you have to maintain that discipline as such. It's not like that some particular guy is your friend, then you will relax the rules for him. Yeah, okay, fine, chalta hai. और दूसरे को आप फाइनल करें. It's not like that. So you have to be fair and consistent in enforcing discipline. Discipline should be seen as constructive tool for improving performances and achieving goals. So discipline should be viewed as a constructive tool. It shouldn't be viewed as a destructive tool. Discipline shouldn't be viewed as something restrictive or regressive.
कि ये हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस एंड दैट शुडंट हैव, ऑल्दो दिस इज अगेन इज अ चैलेंज एज अ मैनेजर. So many times you will be facing such situations in your organization in the corporate world, that people are going to think that you are trying to be repressive. Okay, but as a manager, you have to always think out of the box. That's what managers do. Okay, you have to always think. मैं ये सब चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन सोल पर्पस ये है, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. ओके, दीज आर रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट आपको यही फॉलो करना है. एज अ मैनेजर यू हैव टू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, always you have to be unique and innovative, right? So that is the main crux. So McDonald's का एग्जांपल हम लेते हैं डिसिप्लिन में, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स दे मेंटेन एंड प्रोटोकॉल्स अक्रॉस ऑल आउटलेट्स, राइट? इट्स नॉट लाइक कि मैकडोनल्ड्स एक दिल्ली में है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल कुछ और है डिसिप्लिन का, वहाँ पे ड्रेस नहीं पहन रहे हैं वो मैकडोनल्ड्स की जो होती है और दूसरी जगह वो पहन रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. So discipline has to be maintained all across the organization and all across the places, right? So this was about discipline. Moving on to the next, unity of command. Now, unity of command is each employee should receive orders from only one superior, right? Unity of command, you know, superior है, boss है, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को फॉलो करना पड़ता है. सेम आर्मी में होता है, सेम पुलिस में होता है, राइट? तो आर्मी में जो कमांडर होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो हमारे बाकी सोल्जर्स होते हैं, राइट? कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल को फॉलो करना है, लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल को फॉलो करना पड़ता है, राइट? राइट, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फॉलो करना. इट्स लाइक दैट. सो दे शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली सुपीरियर्स, राइट? अगर किसी सुपीरियर से ऑर्डर नहीं आप रिसीव कर रहे हैं और किसी और से कर रहे हैं, व्हाट विल इट लीड टू? इट विल लीड टू कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि सुपीरियर ने, मेरे बॉस ने मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बोला है और एक दूसरे हैं जो कि एचओडी नहीं है, कोई और है, और उन्होंने कुछ और टास्क बोला है. तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं अब जो एचओडी हैं उनकी सुने या जो मेरे सीनियर हैं उनकी सुने. So that mostly happens in the organization as well. When you will be joining the organization, so many times it will happen that your HOD, who will be your GM, right, he will ask you to complete a particular task. But at the same time, there will be some guy who will be senior manager. He will also ask you to complete the task. So at that time, what you have to do is you have to first complete the task given by the GM, right? And then you can try and help out your senior manager. ठीक है, सीनियर है तो मदद कर सकता हूँ, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या है कि जीएम के ऑर्डर्स को फॉलो करना, राइट? एंड इट ऑल्सो यूनिटी ऑफ कमांड, इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. जब आप यूनिटी ऑफ कमांड है, एक सिंगल सोर्स से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिश आपको क्या करने में करता है? अच्छे कम्युनिकेशन में और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में, राइट? तो ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि यार मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे पता नहीं लगा कि कोई मेरे जीएम ने तो मुझे ये बात बोली लेकिन दूसरे मैनेजर ने मुझे ये बात बोली. ये नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है, सिर्फ सिंगल सोर्स से एचओडी जो है, जीएम है, वहां से ऑर्डर्स आए हैं, राइट? तो वो जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं लगा, कम्युनिकेशन, क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, और अकाउंटेबिलिटी तो फिर फिक्स होगी. मैकडोनल्ड्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एम्प्लॉयज हैव क्लियर रिपोर्टिंग lines to their immediate supervisor. Okay, so in McDonald's and each and every organization and the organizations which you are going to join, they have a clear reporting lines to their immediate supervisor. You will get to know on the very first day who is your immediate supervisor and who is going to give you orders, who will be your reporting manager. So आपको ये पूरा पता होगा, और उससे ये होगा कि प्रोडक्टिविटी भी कंपनी की बढ़ेगी, chaos भी कम होगा, कंफ्यूजन भी कम होगी, एम्बिग्यूटी भी कम होगी, राइट? सो नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉक्स अबाउट ऑल एम्प्लॉयज शुड वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ओके, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक जगह से कमांड आनी चाहिए, टॉप ऑफ द चैनल, टॉप ऑफ हायरार्की से आनी चाहिए और बॉटम में जानी चाहिए. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो वहां भी यूनिटी, यहाँ भी यूनिटी है, लेकिन वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक कमांड की बात कर रहा है, जहां से आपको ऊपर से कमांड आएगी, टॉप ऑफ द हायरार्की से,
और दूसरा बात कर रहे हैं डायरेक्शन में, यूनिटी मतलब एक डायरेक्शन में काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऐसा लगता है हमें कि यार सेम ही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड भी सेम है, कि डायरेक्शन भी वहीं से मिल रही है, राइट। हम वी ट्राई टू टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डायरेक्शन, लाइक द सुपीरियर इज गिविंग डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप, बट ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉक्स अबाउट all employees should work towards a common goal. There should be a one common goal for which each and every employee should strive for, right? So that is unity of direction. मुझे पता है कि मेरी कंपनी है और हमारा टारगेट है कि हमने हमारी कंपनी को जो बनाना है वो टॉप 100 ग्लोबल कंपनी बनाना है, उसका टर्नओवर 1 बिलियन करना है, राइट, या 50 मिलियन करना है. So that is a common goal towards which each and every employee of that organization is going to work, right? Every department should have a specific objective. Each and every department in the organization, in the corporate world, has a specific objective. HR department का अपना objective होगा. What will be their objective? Their objective will be that employees जो हैं उनके जो भी remuneration है that is equivalent to the other companies, so that employees don't keep on shifting from their company to the others. Okay, and all the rules and regulations are being followed as well. And there is a healthy atmosphere. Management का आपका भी पहला लेक्चर है, तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में. सो द HR people, they will make sure that the organization is having a good organization culture and climate as well. That is the task of HR department. Same will be of finance, right? How to manage the finances of the company, how to make sure that the company bears minimum loss if they bear a loss, right? So finance का वो रहेगा, marketing का रहेगा to sell the product, right? तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, नए नए जिंगल्स बनाएंगे, राइट. सो हर डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कंपनी में रहता है, बट एज अ होल one common objective is there, which is to make that company top 100 global, 200 global या $50 billion turnover जो भी है, that is common. So there is unity of direction, right? एक particular direction में सब लोग काम कर रहे हैं, और all activities that support a single objective should be coordinated and directed by a single manager. So ये भी जरूरी है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्टिव है, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, एंड कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्टेड बाय अ सिंगल मैनेजर. मैंने जैसे कहा था कि मल्टीपल मैनेजर्स हैं, ये है तो कंफ्यूजन क्योस हो जाता है उसमें. बट आज की अगर आप टुडे मॉडर्न में देखें, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग फॉलोड. दैट इज सेपरेट कंसेप्ट, वो आपको बाद में HR में बताया जाएगा. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, क्रॉस कल्चर, क्रॉस टीम्स क्या होती है, डायनेमिक टीम्स क्या होती है, वो अलग चीज है. बट अभी हम फेयोल की बात करें, जो फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी, राइट. सो मैकडोनल्ड्स के केस में आप देख लीजिए कि उनके यूनिफॉर्म ऑपरेशनल प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव रहते हैं अक्रॉस ऑल आउटलेट्स. जितने भी उनके आउटलेट्स हैं वहाँ हर जगह पे उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो यूनिफॉर्म रहते हैं. उनमें कुछ भी वो नहीं होता है कि एम्बिग्विटी नहीं है कि कहीं पे कुछ फॉलो हो रहा है, कहीं पे कुछ और फॉलो हो रहा है. एक सिंगल डायरेक्शन है, एक सिंगल वो है. जैसे कि हम बोलते भी हैं कि दैट्स व्हाई मैकडोनल्ड पीपल दे आर एबल टू अचीव द सेम टेस्ट एवरीवेयर, है ना. ऑल द आउटलेट्स में आप कहीं पे भी जाइए, मैकडोनल्ड्स का जो टेस्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, राइट. क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, unity of direction. Okay, so next will be subordination of individual interest to general interest. Okay, so what is it, subordination of individual interest to general interest? This talks about like in an organization individual has some interest and organization as such has different interest. Organization का interest होगा कि वही $50 billion कंपनी बनाना है, $100 billion कंपनी बनाना है, बिग ग्रो, एकदम ग्रो करना है, बिग ग्रो करना है, अब इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में फैलाना है. Whereas employee will think about himself, like more package, more money, more holidays, like that. So this concept talks about that the general interest of the organization as such should be higher than the individual interest. Organization should prioritize the interest of the group over the interest of the individual member. या इंडिविजुअल मेंबर से ज्यादा जो है प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को गोल होनी चाहिए. दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड प्रोडक्टिव टीम.
तो ये प्रिंसिपल क्या मदद करता है, वो है सिर्फ टीम और प्रोडक्टिव टीम बनाने में करता है। इट रिक्वायर्स अ फोकस ऑन टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड गोल्स, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कैसे अचीव होगा, जब फोकस होगा टीम वर्क पे, राइट। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो इंडिविजुअली सब लोग सोचेंगे अपने के बारे में, कम्युनिकेशन नहीं है क्लियर तो भी, शेयर्ड गोल नहीं है, शेयर्ड गोल की फीलिंग नहीं है, शेयर टीम की फीलिंग नहीं है, तो इंडिविजुअली हर बंदा अपने बारे में ही सोचेगा इंडिविजुअली, राइट। एंड सम वे और द अदर दिस वोंट बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जो टारगेट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रखे होंगे, दे वोंट बी एबल टू अचीव। क्यों? क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअलिस्टिकली सोच रहा है, राइट। सेम अगर आप एग्जांपल ले लीजिए तो बहुत बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, लाइक क्रिकेट सब देखते ही होंगे, तो प्लेयर होता है वो 99 पे आउट होता है या 100 पे, देन व्हाट ही सेज दैट me scoring a century is not important but my team winning is more important. So that's why that particular batsman attempts to play that hook shot, right, for a 6 or a 4, because that is the requirement of that situation. So हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखना है। So that is the crux. Same is with in the football में भी बहुत बारी होता है, like player tells that me scoring a goal is not important, but my team winning is more important, right? All the great players, if you listen to their, after match, what they speak, right? What their speech is all about. So they always consider organization, the team, more important than their individual records, right? So same is the case in McDonald's. The brand equity and consistency are priorities over individual outlet preferences. ब्रांड इंटीग्रिटी जो है और कंसिस्टेंसी है वो प्रायोरिटी रहती है हमेशा, इंडिविजुअल आउटलेट की प्रेफरेंस जो मर्जी होने तो। दिल्ली में इंडिविजुअल आउटलेट है, उसकी प्रेफरेंस कुछ और है कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, या ब्रांड की इमेज को कुछ बेशक चल जाए, लाइक लोगो चेंज, बट ब्रांड कभी उस पर नेगोशिएट नहीं करेगा कि ब्रांड की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी हमेशा ही मेंटेन होती रहेगी और होती रही है मैकडोनल्ड्स में, राइट। सो दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस आउटलेट का कुछ बनने होने तो कुछ भी होने तो, आपने फ्रेंचाइजी ली है, आपने पैसे दिए हैं मैकडोनल्ड्स को, बट दैट doesn't give you the liberty of to brand equity और integrity और consistency के साथ आप कुछ compromise करो, right? So वैसा नहीं हो सकता, that is most important thing. Next is remuneration. Now this is also very important thing, remuneration, ठीक है। remuneration remunerate employees fairly and equitably for their job. तो बहुत बारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अच्छी अच्छी जितनी भी टॉप की बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फेयर और इक्विटेबल पे होती है। ऐसा नहीं है कि मैन है तो उनको पे ज्यादा है, वीमेन है तो उनको पे कम है, राइट। तो फेयर होना चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। फेयर इन द सेंस दैट जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमुनेशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेमुनेशन मिलना चाहिए। उसका एक फायदा और है ऑर्गेनाइजेशन को, उसका फायदा ये है, इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द टैलेंट। if you are not paying them fairly, if you are not paying them equitably, what that guy will think कि यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, and he will switch on to the other organization and other company. So as an HR manager, again your job will be to make sure that remuneration is fair and it is equitable, right? As you can see in the picture, the guy is feeling like the king. Why is he feeling like the king? Because he thinks that he is getting a fair price for whatever job he is doing, and the whatever work he is doing, he is getting the equitable, right? Compensation should be based on factors such as experience, skill, and responsibility. So you get money only when you are experienced, you have the skills, and you are responsible for particular job. Only that you will get good money and good package, right? ऐसा नहीं है कि आपको experience कम है and then you are thinking that okay I'll be getting this much money. ऐसा नहीं है, ज़्यादा money उस time नहीं मिलेगा, experience के साथ ही आपको money मिलता है, right? Fair compensation can increase employee motivation and productivity. If you have fair compensation, it helps in increasing motivation and productivity. This is the point I was talking about earlier. Okay, if you are getting fair compensation, you are motivated to do work. If you are not getting fair compensation, if you think that you are getting less money, what you will do? You start searching for a job in the other organization, right? You will try to look for other opportunities. और मैंने बहुत बार देखा है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते थे, एम्प्लॉय ओवर देयर सिटिंग एंड दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स, लाइक
लिंक्डइन पे और उस पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि फेयर कंपनसेशन नहीं है, उनको फेयर पैसा नहीं मिल रहा, राइट? सो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर, राइट? मैकडोनल्ड्स का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो कॉम्पिटिटिव वेज बेनिफिट्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टाफ, दे मेक श्योर दैट दे हैव कॉम्पिटिटिव वेज बेनिफिट्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टाफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को वो पैसे ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको रेमुनरेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। सो that's how they make sure that they retain the best talent in their organization. Okay, next is centralization. Centralization refers to the concentration of decision making authority at the top of the organization, right? हम बोलते हैं, बहुत बारी बात करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट? अब जैसे अगर आप हमारा इंडिया में मॉडल देखें तो कुछ टॉपिक्स जो होते हैं हमारी स्टेट लिस्ट में है, कुछ हमारी सेंट्रल लिस्ट में है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है, राइट? जो लॉ है, संविधान है, पुलिस एंड ऑल स्टेट में होता है, बट एटॉमिक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वो सेंटर में है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये बता रहा है कि सेंट्रलाइजेशन रेफर करता है कंसंट्रेशन, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर में है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि नीचे वाले जो लोग हैं उनको आपने एम्पावर कर दिया। सपोज मैं एक एचओडी हूँ या जीएम हूँ, तो मेरे पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, बट मुझे कल को लगे कि चलो मैं, मेरे अलावा कोई और जो नीचे सीनियर मैनेजर है वो भी कुछ डिसीजन ले सकता है, और मैंने उसको वो काम दे दिया, देन दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? सो वो एक अलग कंसेप्ट है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। अभी जो फेयोल ने बोला था उसने ही टॉक ओनली अबाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द जॉब, राइट? सेंट्रलाइजेशन की एक जगह पे ही सिंगल अथॉरिटी रहेगी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेगी, विच इज विल बी एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजन, राइट? As it's mentioned in the second point, it is the opposite of decentralization, right? डिसेंट्रलाइजेशन में वही मैंने आपको बताया, जैसे नीचे वाले कोई है मैनेजर, मैं जीएम हूँ और मैंने नीचे वाले मैनेजर को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए एक फ्रीडम दे दी कि ठीक है आप अपनी मर्जी से करिए, तो मैंने वो पावर अपनी डिसेंट्रलाइज कर दी, वो पावर मैंने अपने सबॉर्डिनेट नीचे जो है एम्प्लॉय उसको दे दी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। Now, why Field said that centralization is important? Because he said that centralization can improve efficiency, it can improve consistency and control within an organization. Again, जो ये concept है और ये चीजें हैं, these have been given by Field, right? मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो आजकल डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी मैनेजमेंट है, दे आर गोइंग टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे ट्राई टू मेंटेन द सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है? बट जो लेटेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी नई नई ऑर्गेनाइजेशन अभी आ रही है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप किया, दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड दे हैव ऑलरेडी गॉन टुवर्ड्स दैट। Okay, centralization can improve efficiency and consistency and control within an organization, but can also lead to slow decision. So ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आपने सेंट्रलाइज ही कर दिया है, so every time you will be looking to the higher ups to take the decision. कुछ भी काम करना है कंपनी में या कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपको हमेशा जीएम सर का वेट करना पड़ेगा कि यार वो ही बताएंगे, उन्हीं के पास पावर है, हम तो नहीं कर सकते, हम ये पावर नहीं दी। So what that will lead to, it will make the organization slow in decision making and reduce the employee morale. कहीं ना कहीं आपका मोरल भी हैम्पर होगा उस चीज से, आपको मोरल हैम्पर इसलिए होगा क्योंकि आपको लगेगा कि यार मुझे ये डिसीजन लेना है और ये इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं था, बट स्टिल लाइफ टू आस्क द हायर अप्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल अगर हम ले तो देयर इज अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी एंड ऑटोनॉमी एट आउटलेट लेवल पे ब्लेंड है, उनका सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी रहती है और ऑटोनॉमी रहती है, ऑल्दो वो भी अब टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच ही गेव द प्रिंसिपल वाज स्केलर चेन. So scalar chain, it basically means the line of authority from top management to the lowest ranks is the scalar chain, right? वो टॉप वाला बॉटम, जैसे सेंट्रलाइजेशन है वैसा ही, सेंट्रलाइजेशन में तो हो गया एक सेंट्रलाइज पावर दे दिया आपने, स्केलर चेन में क्या हो गया, लाइन ऑफ अथॉरिटी है मेंटेन कर रहे हैं, लाइक टॉप मैनेजमेंट लेवल guy is talking to the middle management level, then middle management level is talking to the lower management level, right? So मतलब जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियों में ऐसा ही होता है कि आपके जो junior executive है, they are talking to the executive, then executive is talking to the manager, assistant manager to the manager, then senior manager, right?
then deputy GM, then GM. That is the hierarchy they follow, the scalar chain. The line of authority again should be clear from top to bottom. So see, everywhere it's mentioned that it should be clear. Line of authority should be should be clear from top to bottom. Then centralization, in centralization also we are talking about that it should be clear from top to bottom. Why we are saying this? So that there is no ambiguity, there is no confusion, there is no chaos. सबको अपना टास्क पता है, सबको ये पता है कि हमें क्या अचीव करना है, and they are working towards it. Okay, so that is basically, that's why Henry Fayol said that the organization should have a scalar chain, the organization should be centralized, they should be unity of direction, they should be unity of command. उसका सिंगल पॉइंट ऑफ पर्पस ये है कि कंफ्यूजन, chaos, एम्बिग्यूटी ना रहे, एक क्लियर डायरेक्शन रहे जो कि आपको अचीव करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर सके, राइट। सो मैकडोनल्ड के एग्जांपल में फिर से अगर हम देखते हैं तो मैकडोनल्ड ने एक क्लियर कट हायरार्की एस्टैब्लिश की है from few members to CEO. And not only McDonald's, in every organization it is happening that they have a clear line of authority, right? Scalar chain पूरा maintain करते हैं, top to bottom जो भी है middle management है तो वो maintain किया जाता है। उसके बाद अब बात ये है ऑर्डर की। सो ऑर्डर, ये ऑर्डर बेसिकली क्या है? ऑर्डर है पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, कोई भी आपको टास्क करना है, कुछ भी आपको फंक्शन करना है तो material, money, material, people, they should be at the right place at the right time. Only then you are going to achieve that particular task of the company, right? ऐसा नहीं है कि आपके पास people है but material नहीं है, right? अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो आपके पास वर्कशॉप पे एम्प्लॉयज तो है जो मैकेनिक है बट मटेरियल नहीं है, मटेरियल कहीं आपका वेयर हाउस में है तो वो नहीं। ऑर्डर शुड बी मेंटेन कि मटेरियल भी है, मैन भी है, तभी आप वो टास्क अचीव कर पाएंगे। मैकडोनल्ड्स के केस में वही हो गया, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किचन्स फॉर पीक एफिशिएंसी। अब आप मैकडोनल्ड्स में कहीं पे भी जाइए, वहाँ पे इतना सारा रश, इतने लोग आते हैं एक बारी में, तो वहाँ पे एकदम chaos नहीं हो जाता है, भगदड़ नहीं मच जाती, कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे सिस्टमैटिकली मेंटेन किचन फॉर पीक एफिशिएंसी। ऑर्डर का मतलब ये भी है कि मैन, मटेरियल, मटेरियल से अगर आप समझते हैं तो मटेरियल, मैकडोनल्ड्स के केस में क्या हो गया कि उनकी फ्राइज, उनकी बर्गर, उनकी जो टिक्की है, राइट, एवरीथिंग वो वेल मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है along with the people, that is man and material. So वो ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि मैन है तो मटेरियल नहीं, मटेरियल है तो मैन। सो प्रॉपर ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड and each and every point of time in the organization. Next is equity. Next principle जो दिया हेनरी फैयोल, he talked about equity. Equity should be kind, manager should be kind and fair to their subordinates. Okay, equity के मतलब हो गया जैसे ये इसमें आपको देख सकते हैं बैलेंस में both men and women they are equal, right? And this again is very important point in today's world. Manager should be kind. ऐसा नहीं है कि आप you are a manager, you are a boss and you think अरे मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो बॉस हूँ, मैं बॉस अपनी चलाऊंगा और आप काइंड नहीं है। ठीक है, आज की डेट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मनी एक पार्ट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, बट आपका वर्क कल्चर कैसा है, मैनेजर आपसे कैसे बात करता है, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट ओनली डिसाइड्स वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू रिटेन दैट पर्टिकुलर टैलेंट और नॉट। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं बट वो ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर देते हैं इवन दो दे हैव हाई रेम्युनरेशन, अच्छा पैकेज होता है। व्हाई? बिकॉज दे थिंक दैट मैनेजर उनको फेयरली ट्रीट नहीं करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, राइट? सो मैकडोनल्ड्स के केस में अगेन अगर हम देखेंगे तो एम्फोसिस होता है उनका भी कि सबको ट्रीट किया जाए, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। तो जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो कल्चर अच्छा है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, टॉप कोई भी ले लीजिए, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन, सब में ये चीज को मेंटेन किया जाता है इक्विटी। इवन टाटा, अगर आप इंडियन कंपनीज की बात कर लीजिए, टाटा में इक्विटी ये मेंटेन की जाती है अच्छे से। और भी अच्छी अच्छी कंपनियां जितनी भी हैं, राइट, सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज में, कैडिला, सन फार्मा, सब में, अल्केम, सब में। और अगर आप एमएनसीज की बात करते हैं तो उसमें एबट फार्मास्यूटिकल, जीएसके, जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इक्विटी हैज टू बी मेंटेन। ओके, यू हैव टू बी काइंड एंड फेयर टू योर सबऑर्डिनेट्स एट ऑल द टाइम, राइट? सो इक्विटी का कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सो इसमें क्या है, अब जैसे कि ये पिक्चर बता रही है कि आपको मेक श्योर करना है कि पर्सनल को आप चांस दे रहे हैं। किसी ने नया पर्सनल ज्वाइन किया है
उसको थोड़ा फ्रीडम, उसको थोड़ा चांस दिया जा रहा है टू शो हिज टैलेंट, राइट। उसकी जो टेन्योर है दैट शुड बी स्टेबल। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लान। ओके, ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि मैंने एक पर्टिकुलर टास्क करना है और उस टास्क को करने के लिए आई रिक्वायर पर्सनल, राइट। यू विल टॉक यू यार एचआर मैनेजर, ठीक है, कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क करना है और इसके लिए मुझे बंदों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने एक सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कर ली कि हाँ मुझे पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इतने पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि सपोज अभी आपकी करंट टीम में कोई एम्प्लॉय है एंड यू थिंक दैट मे बी कल को हो सकता है दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन गो टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का रिप्लेसमेंट भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे टू फिल द वैकेंसीज, सो दैट योर टास्क डजंट हैपन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैपन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन टास्क हो वो ऑर्गेनाइजेशन उस टास्क को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात होती है। जैसे कि इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि बॉस एकदम टेंशन में है और पीछे जो एम्प्लॉयज है बैकग्राउंड में एवरीवन इज सेइंग आई क्विट आई क्विट। रीजन बीइंग सेम कि बॉस इक्विटी वहां पे मेंटेन नहीं कर रहा है, आपका रिम्यूनरेशन जो है इक्विटेबल नहीं है, ओके। और वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वर्क क्लाइमेट आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय को हमेशा फील होता है कि जो बॉस है वो उनकी बातों को नहीं समझ रहा है। तो जैसे वो लास्ट स्लाइड में कहा था ना कि यू शुड ट्रीट देम एकदम अच्छे से, बढ़िया से, है ना। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। बॉसी एटीट्यूड आप हमेशा नहीं रख सकते कि आई एम द बॉस, मुझे मुझे सब पता है और मैंने जो बोल दिया वही होगा, ऐसे ही होगा। दैट एटीट्यूड won't fetch you as well as organization any good, okay। सो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान विद एग्जैक्ट हाई लेवल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एफर्ट। सो इनिशिएटिव की बात वही है, जैसे कोई भी बंदा है, कोई भी काम कर रहा है, तो आप हमेशा, आपका टास्क क्या है बेसिकली, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या मैं मैनेजमेंट की ये प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहा हूँ और ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स हो गए हैं, तो टास्क क्या है बेसिकली, टास्क आपका एज अ मैनेजर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहे, राइट, आप अपने टास्क को अचीव कर सकें, ठीक है। और जो भी आपको टारगेट दिया जाता है वो आप उतने ही टाइम में, उससे कम टाइम में अचीव कर सकें, राइट। तो अब आप मैनेजर हैं, आपको 100 काम दिन में दिए हैं, 50 काम दिन में दिए हैं, सारे तो आप नहीं कर सकते भाग भाग के, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप सब चीजें कर सके करें। तो हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट, यू आर गोइंग टू अचीव दैट बाय अलाउंग द एम्प्लॉय टू मेक हिज ओन डिसीजन, है ना। आप एक इनिशिएटिव देते हैं कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर टास्क है, ओके विवेक तुम्हें ये काम करना है, आई एम गिविंग यू द इनिशिएटिव, अब आप इसको करो। सो अच्छे मैनेजर्स की क्वालिटी यही होती है कि जो भी टास्क होता है वो अपने एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं इनिशिएटिव लेने के लिए, कि ठीक है आप इनिशिएटिव, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि जो वो इनिशिएटिव ले रहा है दैट इज पॉसिबल एज वेल। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मार्केटिंग कैंपेन है और आपने किसी को इनिशिएटिव दे दिया कि ठीक है मार्केटिंग कैंपेन करना है और उसका बजट बहुत हाई है। तो एज अ मैनेजर यू हैव टू आल्सो मेक श्योर, जो हमने कहा चेक प्लान कंट्रोल, तो यू हैव टू चेक एंड प्लान एंड कंट्रोल एज वेल कि वो ले रहा है, ठीक है। बट हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट जो है उनको आप फ्रीडम इनिशिएटिव दें, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने। और उसका फायदा आपको क्या होगा कि आपका टास्क अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, एंड ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय है उसका भी मोरल हाई रहेगा कि मुझे इनिशिएटिव दिया गया पर्टिकुलर टास्क को करने का, ओके। सो as a manager, what I think that your biggest task is not like just to be a manager, okay, your biggest task should be that you should become a leader in your organization in real sense, ठीक है। आपको सिर्फ मैनेजर नहीं बनना है, मैनेजर सब होते हैं लेकिन लीडर कोई कोई होते हैं, राइट। तो आपको लीडर बनना है जहाँ भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लीड करें, ठीक है, यू बिकम अ लीडर। जो आपका सबॉर्डिनेट है वो उस टास्क को विलिंगली करें, क्यों, क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आप लीडर हो, आप उसको मोटिवेट करते हो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। वो जस्ट वो टास्क इसलिए नहीं करे कि आप बॉस हो और आपने उसको ऑर्डर कर दिया। सो दैट इज व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल में वैल्यूइंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस, तो मैकडोनल्ड्स और बाकी जितनी भी कंपनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फीडबैक लेती है, उनको वैल्यू करती है, इनकॉर्पोरेट करती है, जो भी सजेशंस दी जाती है उनको इनकॉर्पोरेट की जाती है, फीडबैक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और
इसमें बहुत कुछ आता है आगे एचआर में, अप्रेजल होता है, 360 डिग्री अप्रेजल होता है, वो क्या होता है वो आप बाद में आप जैसे लेटर ऑन पढ़ेंगे। आज तो जस्ट ब्रीफ ये इंट्रोडक्टरी है सेशन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। कमिंग ऑन टू द लास्ट, इट्स स्पिरिट दी कोर। सो ये स्पिरिट दी कोर जो है ये बेसिकली आपका क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब मीनिंग होता है बेसिकली प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट, राइट। विल बिल्ड टीम स्पिरिट बिल्ड करना क्यों जरूरत है, इट विल बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली स्पिरिट ही कॉप का जो कंसेप्ट था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया गया था, पर्टिकुलरली अबाउट आर्मी, जो आर्मी पर्सनल रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत जरूरी है टीम स्पिरिट और स्पिरिट बिल्डिंग हार्मनी। तो वहां से ये कंसेप्ट आया। मैंने देखिए मैनेजमेंट ऐसा अपने आप में कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट की जितने भी थियरीज हैं टॉपिक्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो अभी आप आज फर्स्ट सेशन है, आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा कि इज मैनेजमेंट एन आर्ट और इज मैनेजमेंट ए साइंस, राइट। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, और मैनेजमेंट के जितने भी कंसेप्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिए गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, राइट, फिलोसफी से। तो तो ये भी कंसेप्ट जो है वहां से आया है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो अबाउट आर्मी, जो आर्मी की होती है स्पिरिट बिल्डिंग हार्मनी, वहां से ये कंसेप्ट आया कि प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एंड हार्मनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे मेन फोकस करते हैं, रादर देन इंडिविजुअल टास्क। वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, टीम स्पिरिट करते हैं, ठीक है, आउटिंग करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, बॉन्डिंग ताकि आपकी बनी रहे, टीम स्पिरिट बनी रहे एंड यू आर एबल टू अचीव द टास्क, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पिरिट कॉर्प्स का। मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लीजिए, वही है हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट एंड टीम कोलैबोरेशन। दे मेक श्योर दैट द वर्क व्हिच इज बीइंग डन इज हार्मोनियस एनवायरनमेंट वहाँ पे मेंटेन हो रहा है और टीम जो है जितनी भी है वो कोलैबोरेट कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें स्पिरिट कॉर्प्स। तो ये लास्ट 14th प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी है फ्यूल ने। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी सेशन है, थोड़ा टाइम है, कुछ भी आपके डाउट है या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे वन बाय वन। हेलो। Hi, sir. Good evening. हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yes, very nice session. Thank you. आप बहुत clear थे. ओके, So थैंक मुझे ये जानना था कि once we are like जैसे आज आपने you taught us the principles of management. So राइट। what do we need to approach this topic like? Should we just kind of remember these and will these come in some assignment or something, or will we have to apply it gradually in all our assignments and exams? How is it going to be, the pattern going to be like? या सो ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर असाइनमेंट्स एज वेल, राइट। और पेपर में भी आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और क्या चीज है, तो ये होगा। सो वो करना है। बट देखिए थियरी पार्ट एक चीज है, मैनेजमेंट Yeah. हम जो सब्जेक्ट हम मैनेजमेंट बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ सकता है, राइट। हाँ. हमारा मेन टास्क क्या है, टू बिकम अ गुड मैनेजर, राइट। यू मस्ट बी आइंग दैट यू हैव टू बिकम अ गुड मैनेजर, राइट। एंड एवरीवन हु इज स्टडीइंग हियर दे आर आइंग दैट दे हैव टू बिकम अ गुड मैनेजर। सो Right. नाउ हेनरी फ्यूल गेव दिस कंसेप्ट लॉन्ग टाइम अगो, राइट, 1930s 13 में उन्होंने ये कंसेप्ट दे दिया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड अभी 2023 चल रहा है, we are still studying this topic. Why? Because these 14 principles, some way or the other, these are still applicable in today's world. ठीक है। तो एज अ मैनेजर जब भी आप कंपनी में कहीं पे जा रहे हैं, आप भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। एंड यू विल ऑल्सो थिंक कि ये प्रिंसिपल्स को मैं कैसे अप्लाई करूं ताकि मैं अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकूं, राइट। जैसे मैं बोला कि यू हैव टू बिकम अ गुड मैनेजर रादर देन यू हैव टू become a leader, right. There should be order, there should be equity, right. Because what happens most of the time in the organization when you are joining, if you are a newcomer, you are joining a company, the people over there who are like senior, they try to take undue advantage of yours. जो भी उनको काम देते हैं GM and all, वो आप पे दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए एज अ न्यू ज्वाइनी दैट व्हाट आर योर टास्क व्हिच यू नीड टू परफॉर्म, राइट, जो आपके GM ने आपको काम दिया है। सो ये मतलब आपको इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लगाना है कंपनीज में। सो मेन मोटिव ये है ना, लर्निंग का पार्ट चलता है। ओके। एंड जब हम लोग पेपर दे रहे हैं, सो वी कैन राइट इन आवर ओन वर्ड्स, राइट? यस, यस, ऑफ कोर्स, ओके, of course you can write on your own words,
ओनली हाँ थिंग इज दैट सम ऑफ द कंसेप्ट, जैसे Term. ये हेनरी हाँ फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हाँ मैनेजमेंट हाँ, है, सो दिस यू हैव टू of लर्न, course. दिस यू हैव टू Right, रिमेम्बर right. in this Perfect. particular order, right? Okay, fine. Okay. Yeah, Thank you, sir. Thank you so yeah, much. welcome. Next question. कोई और क्वेश्चन है किसी का? या हेलो। हाय, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि ये जो फर्स्ट सेशन चल रहा है मास्टर क्लास, इसको जी, हम फर्स्ट क्लास के तौर पर ले कि एज अ मतलब मास्टर ऑफ क्लास है, तो ये मेरे को रिमाइंडर है कि अभी, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है ना सर, ना तो रजिस्टर्ड हुआ है और ना ही एलएमएस आईडी जो आईडी पासवर्ड रिसीव्ड हुआ है, तो मैं एक्चुअली मैं अपना सब्जेक्ट भी नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या मेरे को नहीं ये पढ़ना है। देखिए, ये आज हमारा जो सेशन है ये मास्टर क्लास का ओके सेशन है। ये जस्ट आपको एक मैनेजमेंट का जिस देने के लिए है कि 14 ओके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो है, और ये ओके आपको लेटर ऑन भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम है तो ओके वो आपने बता दिया है, जैसे वो टीम हमारी है तो वो सॉर्ट आउट कर देगी, जैसे कि ओके उन्होंने ओके। स्टार्टिंग में कहा था, है ना? और एक्चुअली जानना है कि प्रॉपर क्लास कब से स्टार्टेड होंगे। आपका प्रॉपर क्लास ना ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जो कमिंग वीक ओके है। जैसे आज हम एक मास्टर क्लास ले रहे हैं, और ओके कल भी आपका संडे को भी एक मास्टर क्लास रहेगा, और प्रॉपर क्लास जो आपकी जो कमिंग वीक है वीकेंड से चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ओके ये ओके जस्ट एक थैंक आइस ब्रेकर टाइप है मैनेजमेंट का, कि थोड़ा आपको रहे जी जी आइडिया कि क्या सा जी होता जी है, क्या होता है जी कंसेप्ट जी, एंड दिस क्योंकि एंड ये दैट। मैनेजमेंट टाइप जो है, ये तो 12th में भी पढ़ाया गया है हाँ हाँ और हाँ, ये हाँ आपने हाँ पढ़ा होगा, हाँ ये हाँ हाँ वही हाँ वाली हाँ बात, हाँ हाँ। हाँ। तो वही है। कॉमर्स स्टूडेंट है सर, हाँ मैंने जी, पढ़ा है सर हाँ जी, हाँ जी, एनजीटी वालों हाँ को। जी, राइट ओके राइट ओके, थैंक यू राइट। सर। ओके जी, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो 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 नमस्कार हेलो, सर। नमस्कार जी। मेरा नाम दिनेश कुमार सर, और मैं आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो हमारा सेशन है ये वीडियो रिकॉर्डेड ग्रुप में मिलेगा हमें? ये मुझे पता करना पड़ेगा हमारी जो टीम है कि क्या है जी वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो आप एक बार ही अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, है ना, जी जी। सो दैट टीम एक्चुअल में विल क्या गेट है ना बैक। हाँ सर जी। कि अभी हम कुछ देखिए सभी एक जैसे नहीं है। मैं ऐसी हम्म। जगह हूँ कि मैं हर चीज को नोट भी नहीं कर सकता, तो मुझे अगर हम्म। वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाती है तो मैं बाद हम्म। में इस तरीके से इसको अपना एक श्योर 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 नोट्स श्योर बना सकता हूँ अपना। श्योर 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 श्योर। बाकी सर सेशन बहुत शानदार रहा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हाँ जो, हाँ जी। सर, रेम्युनरेशन सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस क्या है? सॉरी, कम अगेन, रेमरेशन। रेम्युनरेशन सैलरी और वेजेस में डिफरेंस। हाँ, अच्छा सवाल है ये। तो देखिए, अब ये फर्स्ट बिगनिंग क्लास है। अब आई थिंक आप वर्क कर रहे होंगे कहीं पे, है ना? तभी आपने नो सवाल किया नहीं? नो नो अच्छा, सर, नो सर। देखो लेमैन में क्या होता है ना, रेमरेशन, सैलरी और वेजेस हम एक जैसे ही बोल देते हैं, एक जैसे ही मान लेते हैं, लेकिन एचआर में कंसेप्ट अलग है, ठीक है? एचआर में क्या होता है, जो वेजेस होती है ना, यस सर। दिहाड़ी, उनको हिंदी में हम दिहाड़ी बोल देते हैं उसको, ठीक है? यस सर, वेजेस को यस सर। दिहाड़ी बोलते हैं। तो हमारे लेबर लॉज हैं, कुछ एचआर में लेबर लॉज होते हैं, ठीक है? यस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज होते हैं, हमें उसमें जो डेफिनेशन दी होती है वो वेजेस के टर्म में दी होती है, कि वेजेस, यस वेजेस को डिफाइन किया होता है, ठीक है? यस वैसा होता है। बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप उसको सैलरी बोल देते हैं या रेमुनरेशन बोल देते हैं, वो चीज है। लेकिन लेबर लॉ की लैंग्वेज में वेजेस कहते हैं, कि वेजेस की क्या है, यस वेजेस क्या होते हैं। तो वो डिफरेंस है बेसिकली टर्मिनोलॉजी का, लॉ के अकॉर्डिंग है। वैसे आम चाल बोल भाषा में हम सेम बोल देते हैं, रेमुनरेशन, वेजेस, सैलरी एक जैसी। बट यस। डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है। तभी मैंने बोला कि आप शायद जॉब करते हैं, इसीलिए पूछ रहे नो नो हैं। सर, आई एम लेसन। सर, दैट्स अ 12th गुड पास क्वेश्चन, आउट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड थैंक यू क्वेश्चन। सर। ओके। जी सर, स्कॉलर एंड हायरार्की में सर कोई डिफरेंस है कि सेम सर कॉन्सेप्ट है? सॉरी, किसमें? स्कॉलर चेन एंड हायरार्की। हाँ, स्केलर, देखिए स्केलर चेन मैं बताता हूँ आपको फिर से एक बारी। देखिए, ये है आपकी स्केलर चेन, ठीक है? स्केलर चेन में क्या कर रहा है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी रहती है, टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट, ठीक है? तो आप बोल रहे हैं हायरार्की, हायरार्की भी वही चीज है बेसिकली, मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो आप वही मेंटेन करके चल रहे हैं, है ना? तो हायरार्की क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे ना हम, कि बॉटम में लोअर लेवल मैनेजर है, जूनियर एग्जेक्टिव है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजर है, फिर मिडिल मैनेजर है, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? तो वही वो स्केलर चेन है, वही वही हायरार्की। हायरार्की हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि क्या हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या मेंटेन करी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्की मेंटेन की जाती है, डिफरेंट टर्म्स भी यूज की जाती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हम बोल देंगे कि एचआर जो है वो जीएम है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनको चीफ लर्निंग ऑफिसर कह दिया जाता है। तो वो टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, बाकी सेम है, स्केलर चेन है यार की कोई चीज, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो हेलो, हाँ जी। सर, माई सेल्फ जसप्रीत। जसप्रीत सर, मेरा क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग एग्जाम्स जी। हमें जो इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हाँ सर जी। उसकी कोई प्रॉपर डिफाइंड वेटेज होगी या जितना हम उसको मैक्सिमम एग्जैक्चुरेट कर पाएंगे अपनी वर्डिंग्स में उतना लिखना है? देखिए, आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं उस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड नॉट क्रैम्प कि ये पर्टिकुलर चीज की। देखिए, कुछ चीजें होती है जो एज इट इज लिखनी पड़ती है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, मैरी पार्कर फोलियट थी, उन्होंने दी जी। है, तो वो क्या डेफिनेशन है, दैट यू हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर वर्डिंग्स ओनली, है ना, जो उन्होंने कहा, मैरी पार्कर एग्जैक्टली। फोलिट, राइट। तो जी। वो डेफिनेशंस तो आपको उसमें देनी होगी, बट कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो आप अपनी वर्डिंग्स में दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है, सर इसमें राइट। वेटेज का कोई इशू तो नहीं रहेगा ना? वेटेज का इशू नहीं रहता। वेटेज का इशू देखिए कब रहता है, वेटेज का रहता है जब आपको एक पर्टिकुलर चीज कही है। सपोज मैंने एग्जामिनेशन में दे दिया कि अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलिएट व्हाट जी। डज मैनेजमेंट मीन, है ना, तो उस केस में रहेगा कि उस केस में आपको वो अगर, तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा हाँ हाँ जितना उन्होंने उसमें, बोला है। हाँ हाँ उसमें, अदरवाइज सर उसमें जो जहाँ जस्ट मीनिंग एक्सप्लेन करने होंगे वहां नहीं तो नहीं हम नहीं, हाँ वेटेज क्यों हाँ मैटर? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सब कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को समझ के आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, है ना। क्रैमिंग तो कहीं भी मतलब कोई लॉजिक नहीं है क्रैम करने का, है जी। ना, पर्टिकुलर चीज को, तो जी। वो कोई ठीक है सर। दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Hello, इसी पे। sir. हाँ जी, बोलिए। Hello, sir. हेलो हेलो। My name is Navneet, sir. नवनीत, हेलो, हाय। Actually, I want to ask you that there are 14 principles. Is राइट there any राइट। way to remember this all in uh, order? हाँ, ये देखिए, ये अब इसको, ये अच्छा सवाल है, दिस अ गुड क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है, जब मैंने भी मैनेजमेंट पढ़ी थी तो मैंने भी कुछ कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ कंसेप्ट बनाने की कोशिश की थी कि यार मैं इसको रिमेम्बर करूं, बिकॉज दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर होंगे, है ना, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ वेरी गुड Yes. क्वेश्चन। सो अब इसका जो मैंने इजाद किया है, जो मैंने बनाया है, दैट इज, एक सन है, वो अपने डैड को कह रहा है कि डैड, UCUSSR, एंड डैड सन को कह Mhm. रहा है OIC, राइट। तो वो कैसे हो जाएगा, डैड, डैड UC, डैड DAD, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, डैड, ठीक है। उसके बाद UC, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। USSR, ठीक है। और आगे क्या हो गया आपका, OIC, ओ में क्या हो जाएगा, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट। मतलब इस तरीके से आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, ऐसे कुछ बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या, किस चीज से आप रिमेम्बर कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे बना सकते हैं भी, जो मैं अभी पढ़ के दिमाग में सोच रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। Yes, sir, it was fantastic. हाँ हाँ हाँ। And I want to ask another question, sir. राइट। Uh, do you have any recommendation of a book we can have? Yes, yes, yes. Definitely, you will be told about the books which you should have. और अभी तो ये जस्ट आइस ब्रेकर और वो है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट, ठीक है, मटेरियल आपको मिलेगा, जो हमारा जो कोर्स मटेरियल, जो लर्निंग मॉड्यूल एंड ऑल है, बट आई सजेस्ट यू दैट एवरीवन शुड गो थ्रू द टेक्स्ट, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप उनके जरूर गो थ्रू कीजिए। जस्ट एग्जाम को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ाई कीजिए कि ठीक है, जो नोट्स मिले हैं, जो लर्निंग मॉड्यूल मटेरियल मिला है, ऑफ कोर्स दैट मटेरियल विल बी अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट, बट ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो हमेशा टेक्स्ट बुक्स को जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू जरूर जाएं, ठीक है। तो वो आपको बता दी जाएगी टेक्स्ट बुक एंड क्या है ना, वो आपको जब सिलेबस मिलेगा, वो मिलेगा, तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ना, ठीक है। ओके Okay, thank you, sir. ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर माय नेम इज हाँ जी, बोलिए। सर, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 टॉपिक्स हैं, हाँ जी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें बाद में डिफाइन किए जाएंगे अच्छे से? बाद में डिफाइन मतलब? मतलब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह, ये प्रॉपर पढ़ाए जाएंगे बाद में? हाँ, बाद में भी आपको पढ़ाया जाएगा, बाद में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी क्या आज आपको हाँ समझ जी। में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया, पर एक्चुअली मेरी क्लास ना 10-15 मिनट लेट हो गई थी ना। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, जी। कोई बात नहीं, ये तो आपको बाद में भी पढ़ा जाएगा, ये तो जस्ट, ये मैं बोला कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऐसा।
मास्टर क्लास है आज और कल का, तो ये पढ़ाया जाएगा बाद में भी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, sir. हेलो, Myself Arup Bose. Sir, who has login to the Sunni website? Can they start study there? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। सुन्नी मतलब हमारा जो सुन्नी वेबसाइट है वहाँ पर जो लॉगिन किया हुआ है, ओके, मतलब जिन लोगों का लॉगिन हो गया, जैसे मेरा भी हो गया, राइट। तो वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सी यू नीड टू आस्क द टेक्निकल टीम। टू बी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता इस बारे में अभी कि क्या है सिस्टम, हाँ मुझे नहीं पता है। आप जो हमारी टेक्निकल टीम है वहाँ पे क्वेरी डाल दीजिए ये वाली, सो दे विल लेट यू नो कि क्या ओके कर सर, क्योंकि वहाँ सकते। पर रिकॉर्डेड वीडियो भी शो हो रहा है अभी। हाँ 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 हाँ, नहीं वो आप एक क्वेरी डाल दीजिए जो हमारी टेक्निकल टीम है, दे विल गेट बैक टू यू, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस बारे में अभी कि क्या है कैसे है, हाँ, इस बारे ओके सर, और सर में। आज का सेशन का जो ये मतलब मैं भी बीच में ही अटेंड किया हूँ, ओके, और ये बाद में रिकॉर्डेड मिल हाँ सकता है हाँ क्या? हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ है तो मिलेगा ही आपको, वो तो ऑनलाइन अभी सेशंस वो भी डलेंगे, मॉड्यूल भी डलेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई पार्ट कुछ आज का मिस हो गया तो आप यू नीड नॉट वरी, ये आपको फिर से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सब कुछ आपको मिलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है, नथिंग टू वरी। ओके सर, थैंक यू सर। राइट राइट, कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन? Sir, good evening, sir. Rohit गुड here. इवनिंग रोहित, या Sir, actually, you have written like 14 principle of management. Like I have to write in let's say it is coming in exam. So I have to write in the order of like यस यस, entire order, like या like अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू राइट इन दैट ऑर्डर। okay, okay, ये okay. कुछ चीजें हैं जो मतलब आपको एज इट इज ही लिखनी होती है, और आप कहीं भी चल जाइए, कोई भी पीपीटी उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यू हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। एंड इवन आई wrote in this particular order, and this same question even I asked to my professor at the time of MBA। तो हाँ, ये आपको करना पड़ेगा ये तो। Thank this you you so have much. to do, yeah। Next question। Hello, sir. Good evening. Hello, good evening। Sir, I'm Som from Goa. Okay, hi First of Som। all, thank you very much for such a wonderful session. थैंक यू सेशन बहुत इजी था सर, थैंक यू अंडरस्टैंड भी बहुत इजीली हुआ है। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे पर्टिकुलर एवरी सब्जेक्ट के लिए, ताकि हम फैकल्टी से कनेक्टेड रहे, ताकि कोई भी डाउट हो हाँ, तो। हमारी टीम लगी है इस पे, कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करना है, स्मूथ करना है, तो आई एम श्योर कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा और आपको जो मेंटर होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, श्योर वो होगा, दैट विल बी डन। ओके सर, और आई होप कि आप हमारे साथ आगे भी मतलब ऐसे जरूर सेशन। जरूर, हाँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है किसी का? हेलो सर। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन तो बहुत अच्छा रहा सर, लेकिन एक क्वेश्चन है सर मेरा हाँ जी हाँ कि जी। जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट है, तो क्या सर वेरिएशन नहीं होगा, जो सबकी क्लासेस सेम ही रहेगा? जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के हैं तो इसमें एमबीए वाले भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हैं, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा सर? ये अगेन मेरे को ये टेक्निकल टीम से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं लोग, ये तो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो इसमें जो लोअर लेवल के पर्सन है उनको तो समझ आएगा नहीं, जैसे कुछ चीजें हमारे दिमाग से भी बाहर जा रही हैं। नहीं, वही अगर आपके दिमाग से कुछ बाहर जा रही है तो आप बताइए कि क्या चीज वो बाहर नहीं जा सर, रही है, आज लाइक। तो सर समझ आ गया सब हाँ हाँ कुछ, हाँ, जस्ट मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या क्लासेस अलग अलग होंगी या तो साथ में होगी सबकी सब? एमबीए वालों की तो साथ में ही होगी, जो एमबीए वाले हैं उनका तो जी जी। साथ में ही चलेगा, हाँ। और डायरेक्ट सेलिंग वालों का सर, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट है तो हमारा कैसा रहेगा? डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को आइडिया नहीं, पूछना पड़ेगा कि क्या है आपका ना डायरेक्ट सेलिंग और का। ये मैनेजमेंट सर हमें भी कंपलसरी होगा शायद, जैसे हाँ मैं हाँ देख हाँ रहा हाँ था हाँ, एलएमएस में। ये वाला सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये और कंपलसरी जस्ट होता है। ओके, थैंक यू सर। एक हाँ क्वेश्चन जी और है सर साथ हाँ में, जी। जैसे एंड ऑफ द सेमेस्टर जब एग्जाम होंगे सर, तो हम्म ऑफलाइन तो हम लोग लिखते थे, देन हम्म। जब हम ऑनलाइन सेशन देंगे, एग्जाम देंगे, तो कैसे सब थियोरेटिकल, हाउ इज इट पॉसिबल सर, कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ नहीं, कोई नहीं, ये हमारे भी अभी सिस्टम अभी हुआ है, शुरू हुआ है, लाइक फर्स्ट टाइम ही ये है, तो ये आपको बता दिया जाएगा, अभी वो बहुत आगे है, अभी अब उसकी चिंता मत करो आपकी कैसे होगा क्या होगा, वो बाकी बता दिया सेशन जाएगा। एंड वी बहुत विल अच्छा मेक सर। एंड हाँ, वी विल मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है एग्जाम देने और करने ओके में, सर, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। हाँ, थैंक यू सो डोंट मच वरी। सर, बेस्ट थैंक यू सेशन थैंक के यू लिए। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू। और किसी और का सवाल है कोई?
कोई और Hello, पूछना? sir. हाँ, हाय Arzu here. आरजू, हाय आरजू। Sir, can you please explain the 10th and 12th principle, that is order and stability of personnel again? ऑर्डर एंड इक्विटी, ऑर्डर No, एंड sir, इक्विटी। order and stability of personnel. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन, राइट। सो ऑर्डर जो है, ऑर्डर talks about people and material should be in the right place at the right time, right? You have to make sure कि जो एम्प्लॉय है या रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज है वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे है, ठीक है। इसमें मतलब एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आप सपोज एक कार फैक्ट्री है, राइट, और कार फैक्ट्री में आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट, और आपको दिन में करीब करीब 1000 गाड़ियां निकालनी है, ठीक है। वो आपका टास्क दिया है मारुति ने कि 100 या 1000 व्हीकल्स आपको प्रोड्यूस करनी है। एंड उसमें क्या है कि पीपल तो है आपके पास वर्कशॉप पे, ठीक है, जो टेक्नीशियंस है वो सब तो है, लेकिन मटेरियल ही नहीं है, वो मटेरियल ही नहीं है, वो गाड़ी को बनाने का मटेरियल ही नहीं है, या गाड़ी में टायर लगाने का मटेरियल ही नहीं है, सिर्फ उसका आउटर फ्रेम है, तो वो नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट में, फैक्ट्री में, कि ऑर्डर नहीं मेंटेन है। ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। ऑर्डर का मतलब है कि एवरीथिंग शुड बी ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर में होनी चाहिए हर चीज का, एक व्यवस्थित, हम हिंदी में बोल देते हैं ना, व्यवस्थित होनी चाहिए। कोई भी चीज है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपके पास Okay, पीपल sir. भी होना चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, ठीक है, प्लेस भी होना हाँ चाहिए, जी. एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर का Okay, मीनिंग sir. होता है, ओके। और नेक्स्ट था आपका, Okay. आपने बोला था कौन सा वाला था आपका, 12th, ये वाला, स्टेबिलिटी। stability. हाँ, स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात हो रही है कि एज अ मैनेजर आपको मेक श्योर करना है कि जो पर्सनल आपका जो है, एम्प्लॉय जो है, उसकी जो टेन्योर है, मतलब कि जो काम कर रहा है कंपनी में, कितने टाइम के लिए भी हाँ कर रहा है, ही जी. स्टेबल, ठीक है। आप मैनेजर हैं, आपके नीचे कोई सबॉर्डिनेट है, यू हैव टू मेक श्योर कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्टेबल, स्टेबल इन द जॉब। ऐसा नहीं है कि वो कुछ Okay. टाइम बाद छोड़ के चले जाए। अब नॉर्मली आदमी क्यों, हमारी सेइंग है, ठीक है, और सेइंग क्या हाँ कहती है जी. कि पीपल नेवर क्विट देयर कंपनी, दे क्विट देयर बॉस। जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो कंपनी को नहीं रिजाइन करता है, वो एक जॉब बॉस के कारण रिजाइन करता है, ठीक है। सो एज अ मैनेजर आपका टास्क ये है कि आपका एम्प्लॉय जो है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है, आप उसकी बातों को सुन रहे हो, आप उसको एम्पावर कर रहे हो, उसका जो रेमुनरेशन है वो सही है कि नहीं है, बिहेवियर सही है कि नहीं है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए जो टेन्योर है Okay, sir. पर्सनल का, राइट। ओके, थैंक Okay. यू, Okay, थैंक यू, sir. हाँ, bye। Sir, another one, remuneration और equity में क्या difference रहेगा? देखिए, इक्विटी जो है ना, इक्विटी हम बात करते हैं बराबरी की, इक्विटी मींस बराबरी, ठीक है। तो हाँ बराबरी जी. किसमें, हर चीज में बराबरी, आपकी कंपनी की पॉलिसीज में भी बराबरी होनी चाहिए, रेमुनरेशन में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो हमारे ये बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया जो है, क्रिकेट जो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो पहले क्या होता था कि मैन जो थे, है ना, मेल हाँ जी. प्लेयर्स जो थे उनको रेमुनरेशन ज्यादा था बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट, और Okay. फीमेल को कम था, ठीक है। अब रिसेंटली क्या किया है कि बराबर हो गया है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, आपको बराबर का पैसा मिलेगा, ठीक है। वो एक तरीके की इक्विटी है रेमुनरेशन के मामले में। बट इक्विटी सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होती है, इक्विटी आपकी दूसरे मामलों में भी होती है, लाइक राइट्स, जो आपको छुट्टियां मिल रही है, ठीक है, वो सारी चीजें भी जो बराबर, हर चीज की बराबरी होनी चाहिए, राइट। जो Okay, आपको sir. पर्टिकुलर जॉब दिया है, जो आपको जॉब टास्क दिया है, वो भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेल कैंडिडेट है तो उसको कम है या उसको ज्यादा है या फीमेल को कम, वैसा नहीं। इक्विटी मतलब इक्वल होना चाहिए हर चीज में जो भी है, चाहे रेमुनरेशन है चाहे Okay, sir. पॉलिसीज है, राइट। तो इन दैट यू हैव टू Okay, बी sir. फेयर। हाँ, ये इसका, Okay. Thank you, sir. हाँ जी, Sir, please explain initiative also. ओके, इनिशिएटिव। हाँ, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बेसिकली क्या ये बात कर रहा है कि कोई भी इम्प्लॉय है जो आपके अंडर काम कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट वो इनिशिएटिव ले। वो एम्प्लॉय कोई चीज कह रहा है कि पर्टिकुलर टास्क करना है, तो वो इनिशिएटिव ले रहा है, वो मतलब अपनी बात कह रहा है कि सर इस चीज को ऐसा करना है, ठीक है। आपने वो फ्रीडम दी है, वो लग्जरी दी है उस आपके सबॉर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉय को, कि वो उस टास्क को करने का इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है। तभी वो, अगर रेड में अगर आप देखोगे तो आदमी, बाकी सब पीछे खड़े हैं और एक आदमी रेज कर रहा है हैंड, ही इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। तो इनिशिएटिव का मतलब यही कहा गया, राइट। It means taking stand. सॉरी, It means taking stand. इट मीन्स
Not taking stand, it means you are empowering that person to take that particular decision. ठीक है, कोई काम करने का, डिसीजन करने का आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं, वो है। ठीक है, स्टैंड तो हो गया कि कोई प्रॉब्लम है और आपके एम्प्लॉय ने बोला कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी, वो नहीं। इनिशिएटिव का मतलब कि आपको एक, उसको एक फ्रीडम दे रहे हैं कोई चीज को इनिशिएटिव करने का, कि हाँ वो चीज कर रहा है, कि वो चीज की फ्रीडम है, कि यू आर लेटिंग हिम टेक द इनिशिएटिव, कुछ भी काम करने का इनिशिएटिव आप उसको दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो उसमें यही कहा गया कि एम्प्लॉइज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क है, मैंने एज अ मैनेजर कहा कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर टास्क को मैंने वैसे अचीव करना है। मैंने 100 पेन बेचने हैं मार्केट में, तो मेरा मार्केटिंग कैंपेन इस तरीके का है। बट एट द सेम टाइम एक और एम्प्लॉय है जो मेरा सबॉर्डिनेट है, वो कुछ और आइडिया दे रहा है कि सर इसको ऐसे करना है, ही इज टेकिंग द इनिशिएटिव। तो आप उसको वो फ्रीडम दो कि ठीक है तू ये इनिशिएटिव ले, कि ये टास्क करना है, वो आपने उसको दिया इनिशिएटिव कि हाँ इनिशिएटिव लो और उस टास्क को करो। तो इसका मीनिंग ये है कि आप इनिशिएटिव अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको दो, कि हाँ ठीक है यू इनिशिएट, आप वो प्रोसेस को कर सके, फ्रीडम उतना होना चाहिए। बट उतना ज्यादा फ्रीडम भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो पाए या कंपनी को नुकसान हो जाए। एज अ मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल्सो, यू हैव टू चेक, कीप द बैलेंस। तो ये है इसका मीनिंग इनिशिएटिव का, राइट? ठीक है, Okay, sir. Thank you so ओके, much. यू वेलकम। किसी और का कोई सवाल? हाँ जी, कोई और? एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है तो बस फिर रैप अप करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। ये हेनरी फेयल ने नहीं कही है, ये स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्टीव जॉब्स ने कही है। और स्टीव जॉब्स ने भी जब अपनी लास्ट उसमें गए थे स्टैनफोर्ड में 2005 में, उस टाइम कही थी। ऑल्दो उन्होंने भी वो ये वर्डिंग्स थी ये पढ़ी थी, किस बुक में पढ़ी थी, उनके ओरिजिनल वर्डिंग्स नहीं थे ये, किसी बुक से पढ़ी थी, बट उन्होंने कोट की थी। सो आज क्योंकि आप लोगों का पहला सेशन है, तो मेरी तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलवेज स्टे हंग्री, ऑलवेज स्टे फुलिश। लाइफ में आप कुछ भी काम कीजिए, कहीं पे भी जाइए, मैनेजर रहिए, टीचर बनिए, कुछ भी करिए, ऑलवेज स्टे हंग्री, राइट? हंग्री का मतलब क्या हो गया कि कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिल रही है, आप उसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड स्टे फुलिश का मतलब क्या हो गया कि नेवर थिंक कि मुझे सब कुछ आता है। मैं भी अगर आपको पढ़ा और मैं सोचूं भाई मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, आप कल को कंपनियों में जाओगे, कहीं पे काम करेंगे, एंड यू थिंक यार मैं बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, दूसरे को नहीं पता है। सो वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगा, इट वोंट लेट यू ग्रो। वो जो एटीट्यूड है वो आपको ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है। हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। अगर आपको अच्छे मैनेजर बनना है, आपको वो क्वालिटी को पहचानना है और अपने में भी इम्बाइब करना है। तो मैं आपको, क्योंकि आज पहला सेशन है, पहला लेक्चर है, तो मैं यही बोलूंगा कि ऑलवेज स्टे हंग्री एंड ऑलवेज स्टे फुलिश, ठीक है। हंगर, ऑलवेज स्टे हंग्री टू गेट मोर नॉलेज, ठीक है, टू ग्रास्प मोर इंफॉर्मेशन, कहीं से भी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, ठीक है, ताकि आपकी अपनी एक सेल्फ ग्रोथ हो, राइट। और स्टे फुलिश तो मैंने बता ही दी है कि आप हमेशा अपने आप को ये मत समझिए कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ये होना चाहिए कि यार ठीक है मुझे ये आता है, बट मुझे बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं पता आती है और मुझे सीखनी है, ठीक है। तो अच्छे मैनेजर आप तभी बने, अच्छे लीडर। और इस कोर्स का मीनिंग भी यही है, एमबीए आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और आप क्यों पढ़ रहे हैं, टू बिकम अ गुड मैनेजर रादर टू बिकम अ गुड लीडर। आपकी एस्पिरेशंस होनी चाहिए टू बिकम अ लीडर। लीडर का मतलब यही नहीं होता है कि पॉलिटिशियन बनना है, नहीं। लीडर का मतलब होता है एक अच्छे मैनेजर जो टीम को लीड कर सके, ठीक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर सके। अब सीईओज तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम स्टीव जॉब्स का ही नाम लेते हैं, सत्या नडेला का ही नाम लेते हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वाले का ही नाम लेते हैं, गूगल में उनका ही नाम लेते हैं, एप्पल टिम कुक का ही नाम लेते हैं, रतन टाटा का ही नाम लेते हैं, बिकॉज वो मैनेजर से ज्यादा बढ़कर वो लीडर थे। और ये लीडरशिप कंसेप्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा एचआर में, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो सेशन भी, जो भी टेकअप करेगा। तो क्योंकि आज आप लोगों का पहला लेक्चर है, और मैं बस यही इसीलिए लास्ट में डाली थी स्लाइड आप लोगों को बताने के लिए, ऑलवेज ट्राई टू स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, ओके। सो आई थिंक अभी कोई और किसी के क्वेश्चन है लास्ट तो ले सकते हैं, तो कोई पूछना चाहे तो, एनी क्वेश्चन? shall we wrap up the session then? ओके देन, ठीक है, आज का सेशन फिर इतना ही रहेगा। और आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में। एंड
आई होप जो भी आपकी आज की क्वेरीज थी उनको मैं सॉल्व कर पाया। ठीक है, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मटेरियल को लेके, कोर्स मटेरियल को लेके या क्लासेस को लेके, उनका ड्यू नोट हमारी टेक्निकल टीम ने कर लिया है, और आप उनको भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप जरूर डालिए, और we'll make sure that everything goes smoothly here afterwards. Okay, so that's all for today then. Okay, okay then. Okay, fine. Okay, so that's a wrap up. Thank you, sir. Okay, good night. Okay, bye.